we will be discussing till now what we have done is clear to you. We have completed first three modules, and I'm very happy to share that the task given yesterday as an activity, almost 78% of the students have submitted the task, and almost maximum of you have done it very effectively, and it will be great if you have learned it things very effectively. So before starting the session, I just wanted to consider that is everything okay? Am I audible? Am I audible? Okay. Yes, sir. Very well, sir. Yes, Okay. sir. Okay. So till now, what we have studied is we have seen some of the basic introduction to MS Excel. Yes. Then we tried data entry into the MS Excel. That was very basic. Maximum of you know those things in the past also. Okay. Then we tried to modify our Excel sheet into a very effective way. That means we try to learn how to border, how to bold, italic. That means we did in stages everything like how to set a font in MS Excel. Yes, this we have seen. You know how to change the font size, bold, italic, underline, then bold bordering the cells you have seen. Then again, you have also understood how to fill the color in a cell, then how to change the color of an individual text, whatever you are entering into the cell. Then we started with alignments. When you and know how to input the text, you went for the alignment of the text. We went for the simple alignment based on the interface, that is top alignment, middle alignment, bottom alignment. Okay, I'm just repeating for all those who are joining late. And then we went for the orientation, that is orientation of your text. After that, text wrapping, that is if you have a long data to that you have written and that has multiple words, so you can wrap based on the length of, or you can say the width of your cell. Then this is very important, that is merge and sint we have taken. And I've also shown you that how to use merge across, which is very effectively used when you don't want to select multiple cells or merge them. What you do is you just take your cell. आप करते क्या है कि कोई भी आपका सपोज लॉन्ग एंट्री है तो दिखाता है एक ही सेल में है, ठीक है। और आप जितना भी जिस स्टेज तक भी चाहते हैं, सपोज आप चाहते हैं कि वो A B C D E 5 कॉलम्स में दिखाई दे, वो दिखता 5 कॉलम में, बट डाटा एंट्री उसकी सिंगल कॉलम में होती है और वो मर्ज भी नहीं होता है, तो दैट इज मर्ज अक्रॉस। Then after that, we went for the number part. In numbers, you have seen how to enter different kinds of number. That is from general, numerical, currency. These are all practice based. आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे so you'll get into it. मैं ज्यादा डीप इसलिए नहीं चाह रहा हूँ, so that we can touch all the topics together. ठीक है। Then after that, in styling, we started with different ways of styling, and in the previous class we have done with the condition formatting, where I have told you about the data bars as well as highlighting different cells. This is very important, and I'm good, feeling glad that maximum of you have who have submitted the activity have given it in a very effective manner. So today, what we'll be studying is first, when you know how to enter any data, ठीक है, आपने ये सीख लिया है कि how to insert the data into the table. Then I wanted that data should be seen in a very effective manner in the form of charts, that we will be studying today. Another thing that we will be studying today is the spark line, which is very important. That means if you have, I'm just listing you, suppose you have n number of different entries and you want that it should be graphically represented. These things will help you very effectively when you create an effective dashboards. So if time permits, we will be taking dashboards also after few sessions, but I'm just making you that a good exposure, एक अच्छा exposure हो जाए आपको कि चीजें क्या क्या हो सकती हैं एक्सेल में। तो for that case I am just touching all the things very effectively. So Sparkline is also very effective tool in the MS Excel, where suppose you have n number of different datas that need to be entered और आपको बार ग्राफ बनाना है, तो आप एक ही सेल में, you can see, आप एक ही सेल में, is my screen visible?
सो आप एक ही स्क्रीन में जो है मल्टीपल बार्स बना सकते हैं, एंड दीज आर ऑल डायनेमिक बार। सपोज वी चेंज द एंट्री, सपोज 90 की जगह हम 12 कर देते हैं, Sir, तो your आपका screen ग्राफ। is not visible. व्हाट इज नॉट विजिबल? Your screen. माय स्क्रीन इज विजिबल, अदर सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑफलाइन आल्सो है। इज माय But स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Sir. आई एम शेयरिंग द लाइव स्क्रीन, सो आई हैव ओपन द एक्सेल, इज इट विजिबल? Yes, sir. Okay. Now is it visible to everyone? Okay, those who have joined late, मैं आपको बता दूं कि we were just discussing about कि what all the topics that we have studied till date. So till now, from the day one, we have studied about what is worksheet, what are workbooks. Then we went for different tabs in the ribbon. Then based on this, we have studied quick toolbar also. ठीक है. Then individually we have taken what are different fonts, alignments, numbers, styles, cells. Then in the previous class, we have taken the editing tools. Add-in is not very important to you, and analysis data will be taken when the things goes um, in the above intermediate zone. So every tab, starting from the file, home, insert, page layout, formulas, data, review, every tab has different interfaces, different quick toolbars, and every toolbar has a very specific function. I'm just adding few students, those who have joined late. Okay. तो हम डिस्कस कर रहे थे कि वी विल टुडे इन टुडे सेशन वी विल सी दैट व्हेन यू नो हाउ टू एंटर द डाटा इनटू द टेबल, सो वी विल टेक दैट आपने जो डाटा डाला है वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको पता है कि आप रैंडमली डाटा एंट्री स्टार्ट कर दे रहे हैं, आप कुछ भी लिख रहे हैं, फटाफट फटाफट लिख रहे हैं, तो कई बार होता क्या है कि आप डाटा एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं, और प्रॉब्लम कब आती है जब आप देखते हैं कि यहाँ पे आप आपको आपने जो डाटा डाला है वो गलत है। से फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि सपोज डाटा वैलिडेशन तो आज का है हमारा टॉपिक, ठीक है। तो डाटा वैलिडेशन में क्या होगा, सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे एक स्क्रीन है, ठीक है, जिसमें मैंने एक प्रोडक्ट लिया है, उसका एक कोड है जो कि 4 अल्फाबेट्स का होना चाहिए, ठीक है। अल्फाबेट की स्पेलिंग सही है, ठीक है। देन उसमें एक आईडी है जो कि 3 डिजिट्स की होनी चाहिए, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, और एक एज लिमिट ले रखी है हमने उस प्रोडक्ट कोड को यूज करने वालों की, विच इज बिटवीन 18 to 60, ठीक है। तो वो डाटा वैलिडेट है। इसमें आप कई तरीके से डाटा वैलिडेशन लगाते हैं, ठीक है। वन ऑफ द इजीएस्ट वे कि आपको प्रॉम्प्ट कर दे कि जब भी आप डाटा गलत डाल रहे हैं तो एक एरर दे दे ताकि डाटा एंट्री ही गलत ना हो, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या होता है कि आप जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग में लगा लेते हैं। उसमें क्या करते हैं कि सपोज मैंने कंडीशन दे दी कि 3 डिजिट्स का नंबर है, और अगर ना हो तो वो रेड हो जाए। बट उस केस में क्या होगा, डाटा एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, आप अल्टीमेटली देख नहीं पाएंगे कि वो प्रॉम्प्ट हो रहा है। बट डाटा वैलिडेशन के केस में क्या होता है, समथिंग वेरी इफेक्टिव, कि वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। से फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने यहाँ पे डाटा डाल रखा है ABCD ये, ठीक है, मैं अभी इसको मिटा देता हूँ। तो इसने क्या बोला कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट कोड लेना है, तो प्रोडक्ट कोड जो भी होना चाहिए वो 4 अल्फाबेट्स का होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सपोज आपने डाला कुछ भी रैंडमली और आपने एंटर कर दिया, तो वो कोड ले लेगा। लेकिन अगर आपने कुछ ज्यादा डाल दिया तो क्या करेगा, एक एरर शो करना शुरू कर देगा, ठीक है। मैंने 5 डिजिट्स डाला, तो उसने एक एरर शो कर दिया कि भैया जो आपने इसमें डाटा इनपुट किया है दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। देन अगर आपने कम लिखा, सॉरी, अगर आपने कम लिखा तब भी वो प्रॉम्प्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे कंडीशन, आप चाहते हैं कि आपका जो डाटा है जो आप इनपुट कर रहे हैं वैल्यू सेल में, इट शुड हैव अ 4 अल्फाबेट्स, ठीक है। तो इस टाइप का डाटा वैलिडेशन विच इज वेरी इफेक्टिव टूल इन MS एक्सेल, उसको हम आज ट्राई करते हैं। इसको करने का तरीका क्या है, मैं सिंटेक्स आपको बताता हूँ, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं आईडी पे, है ना, स्टार्ट करने के लिए। तो हमें क्या करना है कि ऐसा चाहिए कि 3 डिजिट न्यूमेरिकल्स हो। चल जाएगा आराम से। क्या इसमें चल जाएगा। नेक्स्ट में नहीं चल रहा ना? कोई और सी कॉपी दे। नहीं है, ठीक है, पेज चल रहा है।
Sir, your mic is off. Mic is off because the same thing that I wanted to tell you, that I am giving you this kind of access that you can on and off, just because I don't want that if any student is facing any kind of problem in between, so you cannot distract. But ultimate your distraction should be in a positive manner, because if we are taking time to explain you all these things in a positive manner, so same I am expecting with you people also. Okay. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने अब डिस्ट्रैक्ट कर ही दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑल दो स्टूडेंट्स दोज हु हैव लेस देन no attendance at all, they will be seriously monitored. Actually the thing is it is a skill based certified course from the Samarth, so we have decided that the certificate will be given only to those students those who are actively participating, so that if at all we in the placements or whatsoever activities we say tomorrow that our student has a Samarth certificate, so that means she has the knowledge of that particular domain. It is not like other courses that are running on online in various platforms that आप केवल फीस दे देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जा रहा है, बिकॉज वी आर नो वेयर इंटरलिंक्ड विद द अमाउंट ऑफ फीस वी आर टेकिंग, बिकॉज जितना हम एम्बियंस क्रिएट कर रहे हैं इसको पढ़ाने में, या जितने एफर्ट्स हम लगा रहे हैं सो दैट दी थिंग्स रीच इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, दैट इज वेरी इफेक्टिव. So coming back to our topic today. So today we will be discussing various topics, out of which our first topic is data validation. Data validation मैंने आपको जैसा बताया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमें जो भी डाटा चाहिए that we are entering into the system, it should be validated. That means for example कि अगर मैंने बोला कि मेरा प्रोडक्ट, कोई भी एक सपोज डाटा एंट्री कर रहे हैं जिसमें हम प्रोडक्ट, ठीक है, कोड डाल रहे हैं, और मैंने बोला कि इट शुड बी ऑफ 4 अल्फाबेट्स, तो अगर आप 4 से कम अल्फाबेट्स डालेंगे तो इट विल गिव यू एन एरर. ठीक है, अभी क्या है कि एरर भी बाय डिफॉल्ट, सपोज मैंने यहाँ पे 1 लिखा, फिर भी वो एरर दे रहा है, और एरर क्या बोल रहा है कि द वैल्यू डजंट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल. ठीक है, इस पर्टिकुलर ये जो आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है, इसको भी आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं. तो लेट स्टार्ट. तो इसको कैसे करते हैं कि सपोज हमारी क्वेरी है कि मैं, जो हमारा कॉलम सी है इसमें मुझे आईडीज डालनी है, एंड दीज आईडी शुड बी अ 3 डिजिट न्यूमेरिकल. तो इसके लिए मुझे कैसे क्या करना है, सिंटेक्स गोज लाइक, आप लोग मेरे को फॉलो कीजिए, पहले पहले मेरे को देख लीजिए फिर फॉलो कीजिएगा. कि पहले आपको क्या करना है कि जिस सेल में आपको ये वैलिडेशन लगाना है, आपको वो सारे सेल सेलेक्ट कर लेने हैं. ठीक है, आप एक कंप्लीट कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैंने 1 से लेकर 10 तक की सीरियल नंबर एंट्री है, तो मैं पहले सेल्स सेलेक्ट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ माउस. आपको क्या करना है, पहले सेल पे क्लिक करना है और माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए उसको सेलेक्ट कर लेना है. देन यू विल गो टू, मैं जूम कर दे रहा हूँ, यू विल गो टू द डाटा टैब. जैसे ही आप डाटा टैब पे क्लिक करेंगे, या तो आपके में डाटा वैलिडेशन लिखा आएगा, अदरवाइज इस तरीके का एक सिंबल बना होगा डाटा टूल्स में. ठीक है, डाटा वैलिडेशन पे आप डाटा पे क्लिक करेंगे, फिर क्विक टूल बार्स में आपको एक सिंबल दिखेगा, ये दिख रहा है आपको सिंबल, यस, दिस वन. हाँ, तो दिस पर्टिकुलर सिंबल symbolizes that it is a डाटा वैलिडेशन. इस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे इट विल ओपन अ स्क्रीन विच हैज ऑल द फीचर्स रिलेटेड टू डाटा वैलिडेशन. इसमें क्या करना है, आपको सेटिंग्स पे आना है, देन अलाउ में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो बोलेगा कि आपको क्या चाहिए. तो मैं सपोज अभी हम चाह रहे हैं कि हमारी आईडी में 3 डिजिट न्यूमेरिकल्स हैं, तो होल नंबर ऐड करेंगे, फिर वो पूछ लेता है बिटवीन. ठीक है, तो बिटवीन की रेंज आप कैसे देंगे, देर आर वेरियस वेज. अभी मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ. ठीक है, एक तो आप 100 से लेके 999 तक की रेंज दे देंगे, मिनिमम मैक्सिमम, तो इट विल टेक 3 डिजिट नंबर. ठीक है, तो मिनिमम 100, मैक्सिमम. ठीक है, अनदर वे जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा. ओके कर दिया आपने. ठीक है, आपने स्टार्ट किया, सपोज मैंने यहाँ पे 234 डाला,
इट विल टेक, मैंने उससे बड़ा नंबर डाला तो इट विल गिव मी अ प्रॉम्प्ट दैट इज द वैल्यू डजंट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्टेड डिफाइंड फॉर द सेल। अब इससे ये नहीं समझ आ रहा है कि गलती क्या हुई, ठीक है, ये तो मैंने ऊपर डिफाइंड कर दिया 3 डिजिट न्यूमेरिकल, अगर ऐसा नहीं लिखा होता तो फिर मैं कैसे आइडेंटिफाई करता। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम लोगों को क्या करना है, आप फिर से वैलिडेशन पे आइए, यहाँ पे एरर अलर्ट दिखता है, ठीक है, एरर अलर्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, आप इसको कोई भी टाइटल दे दीजिए, जैसे मैंने टाइटल दे दिया आईडी। तो क्या एरर आना चाहिए, एरर आना चाहिए काइंडली, मैं इसको जूम कर देता हूं, काइंडली इंसर्ट 3 डिजिट न्यूमेरिकल न्यूमेरल वैल्यू, ठीक है, ओके कर दिया। अब जैसे इसको ओके करेंगे तो अब क्या हुआ कि सपोज मैंने अपने आईडी वाले में 4 डिजिट डाल दिए गलती से, तो इट विल गिव मी द एरर काइंडली इंसर्ट 3 डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यू। वेरी क्लियर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। डाटा वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन एमएस एक्सेल, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं कि सपोज अगर हम जब भी डाटा एंट्री कर रहे हैं और डाटा हम जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं जा रहा है, अगर हम चाहते हैं अल्फाबेट है तो अल्फाबेट ही जाना चाहिए, अगर हम चाह रहे हैं कि डेट हो तो डेट ही जानी चाहिए, अगर हम चाह रहे हैं कि इट शुड बी अ टाइम तो टाइम जोन पे ही जाना चाहिए, या हम चाहते हैं कि डेसिमल प्लेसेस में, तो उस केस में, और अगर वैसा डाटा हमारे को नहीं जा रहा है, हमने कुछ भी इनपुट किया और वैसा नहीं जा रहा है, हम चाहते हैं कि आईडी 3 डिजिट नंबर हो और वैसा नहीं है, तो वो एक एरर दे दे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, इस सेल में वैल्यू लिखी जो कि नंबर नहीं था, तो काइंडली इंसर्ट 3 डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यू, वो आपको एरर दे दे। तो इस तरीके के डाटा वैलिडेशन के लिए हम क्या करते हैं, आपको क्या करना है, डाटा पे जाएंगे, ठीक है, इन आपके रिबन में एक टैब होता है डाटा, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, यस, डाटा टैब में जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, जैसे डाटा टैब में क्लिक करेंगे आपको डाटा टूल्स में एक दिख रहा होगा डाटा वैलिडेशन, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगी जो कि डाटा वैलिडेशन, इसमें सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है, और आपको जो भी अलाउ कराना है वो आप दे देंगे, कि आपको कोई भी वैल्यू देनी है, डेसिमल चाह रहे हैं, लिस्ट चाह रहे हैं, डेट चाह रहे हैं, टाइम चाह रहे हैं, टेक्स्ट की लेंथ चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट का लेंथ मैंने यहाँ पे इस वाले में मैंने टेक्स्ट की लेंथ दे रखी कि इट शुड बी अ 4 अल्फाबेट, ठीक है, आप अपना खुद का कस्टम भी कर सकते हैं, जैसे कि कस्टम कहने की मैं आपको बता देता हूँ, सपोज अब ये आईडी जो है 3 डिजिट, मैंने आपको 3 डिजिट का बता दिया कि 3 डिजिट इसमें होंगी तो ये एरर नहीं देगा, अदरवाइज इट विल गिव यू एरर, ठीक है, ठीक है। अब एज का देख लेते हैं, फिर से एक एग्जांपल बताता हूँ कि एज क्या है। अभी क्या है, मैंने इसमें अगर डाटा वैलिडेशन नहीं लगा रखा है और मैंने लिख रखा है एज शुड बी बिटवीन 18 to 60, आपने 23 लिखा तब भी ले लिया, लेकिन अगर 233 भी लिख दे रहा है तब भी वो ले लेगा, कुछ भी लिखेंगे ले लेगा, नंबर लिखेंगे तो भी ले लेगा। तो कई बार क्या होता है कि लोग जब डाटा एंट्री करते हैं तो कुछ भी डाटा डालते हैं, लेकिन आपको क्या है फिर बाद में उसमें फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं, दोबारा डाटा मंगाना पड़ता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए डाटा वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस केस में क्या होगा कि गलत डाटा डालेंगे तो अपने आप एरर देगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगा दिया है इस वाले आईडी वाले कॉलम में, तो यहाँ पे कोई गलत डाटा नहीं डाल सकता, वो जब 3 डिजिट नंबर डालेगा तो ही वो सिलेक्ट नेक्स्ट में जाएगा, अदरवाइज उसके अलावा वो कुछ भी डालेगा, 4 डिजिट डाला तो वो एरर दे देगा कि भाई काइंडली इंसर्ट 3 डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। अगर उसकी जगह उसने अल्फाबेट डाल दिया तब भी देगा काइंडली इंसर्ट 3 डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो इन चीजों को करने के लिए कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मैं अब चाहता हूँ कि मेरी एज, जो भी प्रोडक्ट कोड की एज हो, दैट शुड बी यूज्ड बाय द पर्सन हु आर एजिंग बिटवीन 18 to 60। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले आपको सेल्स सेलेक्ट करने हैं, एक बार फॉलो कर लीजिए। सेल सबसे पहले आप सेल्स सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप डाटा टैब पे आएंगे, देन यू विल क्लिक ऑन डाटा वैलिडेशन,
जैसे ही आप डाटा वैलिडेशन पे आएंगे तो इट विल ओपन दिस काइंड ऑफ स्क्रीन। वहां पे आप सेटिंग्स पे आएंगे, ठीक है। फिर अलाउ में आप लिखेंगे होल नंबर, ठीक है, एंड इट शुड बी बिटवीन, मैंने क्या बोला देख लीजिए, कि मैं चाहता हूं कि इट शुड बी बिटवीन 18 एंड 60। तो आपने लिखा 18 मिनिमम एंड मैक्सिमम 60। अच्छा, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। वो आप इनपुट मैसेज भी दे सकते हैं कि बिफोर, जैसे ही कोई उस सेल पे क्लिक करे तो वो बता दे कि भैया यहाँ क्या डलना है, दैट कैन बी ऑल्सो डन। और एरर अलर्ट भी आप सेट कर सकते हैं। एरर अलर्ट क्या होता है कि जब कोई गलत वैल्यू डाले, सपोज मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ एज, अब जैसे ही कोई गलत वैल्यू डाले तो क्या एरर आए, तो एज आए, जैसे ही डालें तो कुछ भी आ जाए कि काइंडली इंसर्ट एज बिटवीन 18 टू 60, है ना। कि जैसे ही कोई गलत एज डाले तो एरर आ जाए, भाई काइंडली इंसर्ट एज बिटवीन 18 टू 60। ओके कर दिया। अब मैंने यहाँ पे 22 डाला, इट विल टेक। मैंने 56 डाला, इट विल टेक। सपोज मैंने डाल दिया 61, तो जैसे ही मैंने 61 डाला इट विल गिव मी द एरर काइंडली इंसर्ट एज बिटवीन 18 टू 60। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव। रीट्राई 60, उसको 60 कर देंगे तो इट विल टेक, है ना। ऐसे ही अगर हम 17 लिखेंगे तो इट विल नॉट टेक। एवरी टाइम व्हेन वी विल इंसर्ट द रॉन्ग, इट विल टेल दैट काइंडली इंसर्ट एज बिटवीन 18 टू 60। ठीक है, फिर रिट्राई करेंगे। सपोज इसकी जगह मैंने डालते हुए 17 मैंने लिख दिया 19 ईयर्स, इट विल अगेन शो कि काइंडली इंसर्ट एज बिटवीन 18 टू 60। तो वो ये बताना चाह रहा है कि यू शुड ओनली ऐड द न्यूमेरिकल वैल्यू हेयर। तो जैसे ही आपने फिर 19 लिखा इट विल टेक। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द practice purposes when you have n number of data to be inserted। तो जिसको भी कोई प्रॉब्लम है पूछ लीजिए, और जस्ट प्रैक्टिस फॉर 2 minutes। इट विल आस्क यू रिगार्डिंग द टेक्स्ट लेंथ कि आपको कितनी टेक्स्ट लेंथ लेनी है। केवल अल्फाबेट देना है, हाँ तो आप टेक्स्ट ले लीजिए। सो एनी क्वेरीज? सर अगर पॉइंट्स में नंबर है तो पॉइंट्स में भी सेट कर सकते हैं कि कितने पॉइंट्स तक चाहिए हमें। हाँ हाँ, दैट कैन ऑल्सो बी डन। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक ऑप्शन होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DECIM, ठीक है। सपोज सपोज अगेन आपने ये सेलेक्ट किया, ठीक है। फिर आप डाटा पे गए, डाटा वैलिडेशन, सेटिंग्स, एनी वैल्यूज की जगह आप यहाँ पे डेसिमल डाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप डालते हैं तो वो ये सब भी बता देते हैं, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। सारी वैल्यूज बताएगा वो आपको। सपोज मैंने डाल दिया बिटवीन 1 टू 100, ठीक है, 1 टू मैक्सिमम 100। अभी हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो जैसे ही आप लिखेंगे 2, इट विल, तो यहाँ पे आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन जब एज में चाहते हैं, अगर आप चाहेंगे कि 2.4 लिखूं, तो इट विल अगेन गिव यू द एरर, ठीक है, दैट काइंडली इंसर्ट एज बिटवीन। तो उसमें होल नंबर आप देते हैं, लेकिन अगर आप होल नंबर नहीं दे रहे तो आपको डेसिमल देना पड़ेगा, सो दैट यू कैन एंटर द वैल्यूज द वे यू वांट। ठीक है, यहाँ पे आप कितना
लेकिन बस ये कि 100 से ज्यादा देंगे तो इट विल गिव यू एरर, ठीक है। लेकिन अगर 100 से कम देंगे, सपोज 99 दे दिया, पॉइंट के बाद आप कितने भी लिखेंगे इट विल टेक। दैट इज द वे यू कैन, एंड यू कैन एक्सप्लोर द वे यू वांट। इसमें एक और बहुत अच्छी चीज होती है कि सपोज फॉर एग्जांपल आप जितना मर्जी एक्सप्लोर करें, दैट इज गुड। मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि सपोज आप चाहते हैं कि केवल नंबर आए, है ना, आप चाहते हैं कि केवल नंबर आए। अभी क्या है ना, जैसे मैंने यहाँ पे 4 अल्फाबेट्स लिखा, तो मैं 1 2 3 4 डालूंगा तो इट विल टेक। क्यों? कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ जो डाटा वैलिडेशन लगा रखा है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ जो तो डाटा क्योंकि वो वैलिडेशन लगा, 4 करेक्टर्स एक्सेप्ट करेगा। हाँ, मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, टेक्स्ट लेंथ दे रखी है, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि वो 4 क्या हो, मैंने बस ये दिखा रखा है कि इट शुड बी 4। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई जो मैं यहाँ डाटा डालू सकूं, देखो अभी तो कुछ भी डाल रहे हैं डल जा रहा है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो मैं डाटा डालूं इट शुड बी ओनली नंबर, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, या कुछ भी। तो मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, डाटा में गए, अगेन डाटा वैलिडेशन, सेटिंग्स में आए, एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे कस्टम है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको कुछ फॉर्मूलाज अगर सीखने होंगे तो वी विल एक्सप्लेन यू। लेकिन अगर आपको सपोज नंबर चाहिए, तो आपके लिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। नंबर वैल्यू, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, ब्रैकेट ओपन किया, आप रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, है ना, फिर इसको क्लोज कर दीजिए, अब ओके कर दीजिए। अब क्या होगा कि मैंने यहाँ पे नंबर कुछ भी डाला इट विल टेक, ठीक है, इट विल टेक। लेकिन मैं अगर अल्फाबेट डालूंगा तो, मैंने इसको एरर क्यों नहीं दिया इसने, आप बता सकते हैं एरर क्यों नहीं दिया इसने? तो क्योंकि रेंज हमने वहां से सिलेक्ट करी है, हमने इसका टाइप सिलेक्ट नहीं करा। बताइए। फॉर्मूला? नहीं नहीं, डाटा वैलिडेशन इज नो वेयर रिलेटेड टू एनी फॉर्मूला। कोई बता सकता है? तो एरर एरर सेट नहीं करा था इस वजह से। नहीं। एनीवन एल्स? सर क्योंकि हमने जो टाइप है उसका, वो हमने अल्फाबेट नंबर दोनों चूज किया है, तो कुछ भी उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। बट रेंज वही होगी। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर किसी को ट्राई करना है तो आई एम जस्ट गिविंग यू 30 सेकेंड्स, और देन आई विल टेल। अनदर थिंग इज, एक क्वेरी मैंने लास्ट टाइम भी दी थी आपको, many of you who are sitting here they were asking me कि मेरे सिस्टम पे, दिस इज अभी मैं अभी पूछूंगा, ठीक है, कि नंबर वैल्यू के अलावा अगर मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूं तो वो एरर, अब देखिए यहाँ पे वो एरर देने लगा, है ना, लेकिन यहाँ पे एरर नहीं दे रहा है। क्या किया मैंने, बताइए अब। सर जो फॉर्मूला लगा है ना वो F3 में ही लगा है, और सेल में नहीं लगा हुआ है। अब तो मैंने लगा दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मैं बताना नहीं चाह रहा था बट स्टिल, कि माइक कौन है? मैं चाह रहा था कि आप लोग खुद से करें, लेकिन ठीक है, मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉमन वैलिडेशन पूरी स्क्रीन पे रहे, या जितने भी सिलेक्टेड पार्ट पे रहे, आपको उसको पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो दैट इज द डाटा वैलिडेशन। अच्छा, लास्ट क्लास में अभी कुछ लोग पूछ रहे थे कॉपी पेस्ट अच्छे से समझ नहीं है ये वो, तो मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था कि आप क्या करते हैं, 1 2 लिखते हैं, फिर आप उसको जैसे ड्रैग करते हैं तो इट टेक्स द नंबर। अगर आप उसको सिमिलर वैसे ड्रैग करते हैं नंबर्स को तो इट टेक्स दी सिमिलर नंबर, लेकिन अगर आप 2 डिजिट लिख के करते हैं तो इट कॉपीज द सिमिलर वे,
ठीक है। ठीक, और दूसरी चीज मैंने आपको बहुत सारी चीज बताई थी कि अगर आप खाली जैन लिखेंगे, कुछ याद आ रहा है इस तरीके का आपको कि तो किस तरीके से, अल्फाबेट्स है ना? तो फिर अल्फाबेट्स मैंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला हाँ, नहीं आ रहा था समझ। तो फिर मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको अल्फाबेट्स करने हैं तो आप खाली ए लिखिए। और फिर आपसे पूछा था, लेकिन आप क्या कर रहे थे कि कैसे होना है आपको समझ नहीं आ रहा था, है ना? लेकिन मेरे सिस्टम पे हो रहा है, आपके में नहीं हो रहा है। व्हाट कैन बी द रीजन? देखिए मेरे में तो हो जाएगा, मैं बी से स्टार्ट करूंगा तो वो सी से आगे लेने लगेगा, सी से स्टार्ट करूंगा तो वो डी से लेने लगेगा, है ना? इधर से स्टार्ट करूंगा तो इधर भी लेने लगेगा। हो रहा है? सो हैव यू ट्राइड एनीवन? कुछ लोग कह रहे थे कि सर दो दो डिजिट्स कर दीजिए तो हो जाएगा, तो देन वी स्टार्टेड विद, आपके में ए और बी लिया और उसको स्क्रॉल करने लगे आप लोग, है ना? तो आपके में ए बी लिखा आ रहा था, बट मेरे में तो क्या होता है कि जैसे ही मैं करता हूँ, टेक्स दी वैल्यूज। आपको क्वेरी समझ आ रही है ना? सो इसका एक तरीका होता है कि एक्चुअली क्या है कि सारी चीजें इसमें पहले से प्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है? सारी चीजें जो है एक्सेल में प्री डिफाइंड नहीं है, तो कुछ चीजें आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी। अभी तो मैंने खाली ए लिख दिया, लेकिन अगर ए की ए बी सी डी लिख दिया, अगर ए बी सी डी की जगह अगर कुछ और भी इफेक्टिव आप चाहते हैं कि सपोज फैकल्टी की लिस्ट है आप, या स्टूडेंट्स की लिस्ट है, आप खाली स्टूडेंट टाइप, पहले उसमें स्टूडेंट टाइप कीजिए, और जैसे ही आप स्क्रॉल करना स्टार्ट करेंगे अल्फाबेटिकली स्टूडेंट की लिस्ट आनी शुरू हो जाए। आप इस तरीके का कुछ आउटपुट चाहते हैं, लेकिन जब तक आप नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आप स्क्रॉल करेंगे तो वो चीज एक तरीके से कॉपी पेस्ट होती है। जैसे कि मैंने इसको सपोज कॉपी कर लिया और मैंने एक पूरा सेटअप सेलेक्ट किया और कंट्रोल डी दबा दिया, ठीक है, या कंट्रोल वी दबा दिया, कुछ भी आप करेंगे तो वो चीजें तब हो पाएंगी जब आपने उसको एग्जाम, मतलब प्लान उस तरीके से डिजाइन कर रखा है। तो अल्फाबेट के लिए मैंने डिजाइन कर रखा था, मैं आपको भी सिखा देता हूँ कैसे करते हैं। बंद कर देता हूँ ना एक्सेल को। आई जस्ट रीशेयर माय स्क्रीन, मैं एंटायर स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ, है ना? ओके, ओके, सो just raise your hands if you are present. I'm just taking attendance also. Raise your hand, not physically, but raise your hand on the screen. हाँ, Anish is present. Okay, very nice. Just 1 minute. I'm just taking the screenshot of. Okay, okay. Now I'll explain. I think many of you are with me, so it's okay. You know, I was expecting. Yes, yes. Almost everyone is here. So how we can do is, there are various ways. One of the easiest ways, आपको कुछ भी, मतलब not only this ABCD, अगर आपको कोई भी एक repetitive काम के लिए आपको अगर लिस्ट बनानी है तो what you do is my screen visible? You go to file, एक बार सीख लीजिए। मैं आपको बहुत सारे फीचर सिखाना चाह रहा हूँ, बट कुछ कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। You will go to file, then you go to more, ठीक है? जब आप मोर पे जाएंगे यू गो टू ऑप्शंस। ये एक ही बार करना होता है, ठीक है? देन यू गो टू एडवांस। इज इट विजिबल? ठीक है। यस सर। देन व्हेन यू विल क्लिक ऑन द एडवांस, आप नीचे जब आते हैं, ठीक है, यू फाइंड जनरल, जस्ट स्क्रॉल,
ये आपको दिख रहा है जनरल, दिख रहा है? जस्ट स्क्रॉल डाउन, यू विल फाइंड इट Yes. जनरल। ठीक है, देन क्रिएट, यू विल फाइंड अ लाइन, मैं जूम कर देता हूँ, क्रिएट लिस्ट फॉर यूज इन सॉर्ट ऑफ फिलिंग सीक्वेंसेस, है ना? तो इस पे आप एडिट कस्टम लिस्ट करेंगे, तो देर आर एन नंबर ऑफ लिस्ट दैट आर बिल्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको क्या किया, क्योंकि मैं बेसिक सिखा रहा था, तो इसमें क्या हुआ, मैंने आपको मंडे ट्यूसडे करके दिखाया है ना, फिर मैंने मंडे ट्यूसडे की जगह मन ट्यू करके दिखाया, कुछ याद आ रहा होगा। फिर जैन फैब पूरा लिख के दिखाया, फिर जैन फैब पूरा ना लिख के छोटा छोटा लिखा, फिर वो उसी तरीके से आ रहा था, आपको लग रहा होगा कि कुछ भी करेंगे वैसा हो जाएगा, बट इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज लाइक हम प्री डिफाइन करते हैं। मैंने क्या किया, ABCD यहाँ पे डिफाइन कर रखा है जेड तक। ठीक है, अगर मैं जेड के आगे AB कुछ और लिखता तो ये कुछ और भी दिखाता। तो हम क्या करते हैं, लिस्ट एंट्री करते हैं। इस लिस्ट को एंटर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वन ऑफ द इजीएस्ट वेज, आप एक बार उसको एंटर करते हैं, ठीक है, कैंसिल, मैं आपको बता देता हूँ, आप एक बार मैनुअली उसको एंटर कीजिए फ्रॉम A to Z। ठीक है, आप उसको एंटर कीजिए और उसके बाद आप उसको कॉपी कर लीजिए। आपको A से लेके Z तक पूरा लिखना है। ठीक है, फिर आप उसको कॉपी कर लीजिए। जब आप उसको कॉपी कर पूरा लिख लेंगे जेड तक, आपको मैनुअली एक बार लिखना पड़ता है, ठीक है, ऑन योर सिस्टम्स। ठीक है, आप फिर उसको कॉपी कर लेते हैं, फाइल में जाते हैं, जैसा मैं समझा रहा था, मोर पे जाएंगे, फिर ऑप्शंस पे जाएंगे, फिर एडवांस में जाएंगे, फिर जनरल पे जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट में जाएंगे, एक नई लिस्ट का नाम, न्यू लिस्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो आपने कॉपी किया उसको पेस्ट करेंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे, देन ओके। तो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू विल click on the alphabets, it will also follow the similar trend. Hope it is clear. आप एक बार ट्राई करके देखो, मेरे को बताओ फिर, है ना? Can you please sir repeat it again, sir? यस यस, मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज आपके आप ये आपका टास्क था, वैसे मैं फिर भी तीसरी बार बता दे रहा हूँ कि सपोज यू वांट टू ऐड एनी काइंड ऑफ लिस्ट विच इज नॉट अवेलेबल। से फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ABCD बता देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं A लिखूं और मेरे को अगर लिस्ट चाहिए तो मैं स्क्रॉल करूँ तो अल्फाबेट्स आ जाए। ठीक है, मैं जैसे ही रो के करस्पॉन्डिंग करूँ या या कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग करूँ, यू गेट दी ऑटोमेटिकली यू गेट दी सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, अभी तो मैंने ABCD लिए, ये नाम भी हो सकते हैं कि आप चाहते हैं कि एक रिपीटेटिव नेम्स की लिस्ट हमेशा, जैसे ही मैं C लिखूं तो C वाली लिस्ट आ जाए, D लिखूं तो D वाली लिस्ट आ जाए। इस तरीके से अगर आपको करना है तो इसके लिए क्या करते हैं, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। पहले फाइल में जाना है। ठीक है, जैसे आप फाइल में जाएंगे तो नीचे देर विल बी एन ऑप्शन मोर, you'll click on more, you'll get an option options। जैसे ही आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यू गेट दिस काइंड ऑफ इंटरफेस। इस इंटरफेस में यू क्लिक ऑन दी एडवांस। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे एडवांस पे, फिर स्क्रॉल डाउन कीजिए, यू विल फाइंड एन ऑप्शन विद जनरल, है ना? जनरल में एक ऑप्शन होगा एडिट कस्टम लिस्ट, जो कि कहता है कि क्रिएट लिस्ट फॉर यूज इन सॉर्ट्स एंड फिलिंग सीक्वेंसेस। तो सीक्वेंस को फिल करने के लिए, तो इसमें मैंने क्या किया, एक बार यहाँ पे न्यू लिस्ट लिया और आपको क्या करना है, पहले एक बार उस डाटा को कॉपी करना है, चाहे वर्ड से कीजिए, ठीक है, चाहे आप एक्सेल की शीट से कीजिए। यहाँ पे पहले एक बार लिख लीजिए उनको A से लेके Z तक, फिर कॉपी कीजिए, यहाँ पे उसको पेस्ट कीजिए। ठीक है, कंट्रोल C से कॉपी कीजिए, यहाँ पे लाके लिस्ट एंट्रीज में कंट्रोल V से पेस्ट कीजिए और उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप ऐड करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने न्यू लिस्ट लिया, सपोज मैंने लिखा अंकित, अमन, आकाश। ठीक है, याद रहेगा आपको? अभी मैंने ABCD वाला क्योंकि पहले ही ले रखा है, मैंने आपको बताया कि एक नई लिस्ट की एंट्री कर रहे हैं।
अंकित, अमन, आकाश, इसको आपने ऐड कर दिया। ठीक है, अब वो पूछता है कि या तो आप लिस्ट यहाँ से इंपोर्ट कीजिए, ठीक है, या फिर मैंने यहाँ लिख दिया है, तो भी ये बहुत बार ले लेता है। ठीक है, एक बार ऐसे ट्राई करके आपको बता देता हूँ कि सपोज हमने यहाँ पे इसको ऐड किया और ओके कर दिया। ठीक है, हमने क्या लिखा, ओके कर दिया, मैंने लिखा अंकित। ठीक है, तो अभी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आप इसको स्क्रॉल करेंगे, आप अगर अपने सिस्टम पे स्क्रॉल करेंगे तो खाली अंकित अंकित लिखा हुआ आएगा, क्योंकि मैंने एक लिस्ट बना दी है। तो अब मैं इसको जब स्क्रॉल करूंगा तो मुझे वो क्या देगा, अंकित, आकाश, अंकित, अमन, आकाश, अंकित, अमन। आप समझ गए? तो ऐसे ही यू कैन डू एनीथिंग। कोई बहुत बड़े स्टूडेंट्स की लिस्ट है, यहाँ से कॉपी की, मतलब पहले एक बार टाइप कीजिए कॉपी, तो अगली बार जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो रैंडमली इट विल स्टार्ट फॉलोइंग। जैसे मैंने अंकित, अमन, आकाश लिखा, तो मैं अब इसको नीचे ले जाऊंगा तो इट विल फॉलो द सेम अंकित, अमन, आकाश, अंकित। तो होप यू गॉट व्हाट आई मीन टू से, है ना? क्वेश्चन सब है ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Sir. Sir, request you to please like conduct and like there's some question and I've given the queries during the time of the activity one, sir. हम्म Like sir, I was unable to like view the bar graph and the performance of conditional statements, sir. Please help me in that one, sir. सो दैट विल बी ग्रेट अगर हम उसको, मैं आपको पर्सनली उसको बता दूं, है ना? Sir. So during the daytime I am free these days on daytime also, तो अगर आप फ्री हैं तो we can connect together, और जैसे अभी आपके फ्रेंड्स लोग आ रहे हैं, you can come to my lab also. We have a capacity of around 20-30, है ना, 60 की कैपेसिटी है यहाँ पे हमारे पास। इवनिंग में आप कभी भी आ सकते हैं। अनदर थिंग इज, अगर जब हम ऑफलाइन करेंगे यू कैन आस्क दैट टाइम ऑल्सो। तो अभी क्या है कि बिकॉज इट टेक्स टाइम, अभी 45 मिनट्स ऑलरेडी हो गए, आई एम टेकिंग डाटा वैलिडेशन। दो डाटा वैलिडेशन आपको समझ आ गया होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अब आपको बता देता हूँ अनदर टॉपिक फॉर टुडे, दैट विल बी, ये क्लियर हो गया ना, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक हो गया था, बट इट इज क्लियर। डाटा वैलिडेशन इज क्लियर टू यू, है ना? कि अगर हमें कोई भी वैल्यू डालनी है, अगर नंबर की फॉर्म में हम चाह रहे हैं तो वो दिखाए, और एरर जो भी दिखा रहा है उस एरर को भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाटा वैलिडेशन। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टूल दैट आई वांट टू शेयर इज द डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स इन एमएस एक्सेल। उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग दिखा देता हूँ, स्पार्कलाइन। स्पार्कलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट बार ग्राफ्स वेयर इन अ सिंगल सेल। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पार्कलाइन बार वेरी वेरी इफेक्टिव टूल होता है। और इसमें क्या होता है कि सपोज मेरे पास नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, फिर मेरे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की उनकी अटेंडेंस है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि जब मैं डैशबोर्ड्स बनाता हूं, बहुत सारे डाटाज एक साथ डालने की कोशिश करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा